So we are going to discuss a very important topic of chemical equilibrium. This will be the most important topic. इसमें हम डिस्कस करेंगे ली कैटलियर्स प्रिंसिपल. We'll discuss Lee Catelier principle. और you can read it as Lee Catelier principle. जो आपके मन में आएगा आप उसे ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हो. Lee Catelier principle. This is very important. बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ली कैटलियर प्रिंसिपल. नाउ व्हाट डज दिस प्रिंसिपल स्टेट? पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे. व्हाट डज दिस प्रिंसिपल स्टेट? स्टेटमेंट इज इफ अ सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ. यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखेंगे. This principal state is that if a system is subjected, but this system should be at equilibrium. If a system at equilibrium is subjected to change of concentration, pressure or temperature, the equilibrium shifts in the direction. That tends to undo the effect of change. That tends to nullify the change. That tends to undo means nullify. So effect that tends to undo the effect of change. अब हम इसकी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे. ये प्रिंसिपल एक्चुअली क्या कहता है? That tends to undo the effect of change. So this is the statement of डी कैटलियर प्रिंसिपल. अगर आपके पास कोई भी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सिस्टम है a + 2b गिव्स c. दिस सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम. तो अगर मैं इस सिस्टम को डिस्टर्ब करूंगा, डिस्टर्ब मतलब आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और आई विल चेंज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम और आई एम गोइंग टू चेंज द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ द सिस्टम. तो यहाँ पे फिर ये प्रिंसिपल हमें बताएगा अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, वेदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस. तो अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी. अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे रिएक्शन विल फेवर व्हिच डायरेक्शन. तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, दैट्स व्हाट इज नोन एज टू अनडू द चेंज. मतलब सिस्टम अपने आप को खुद से रीएडजस्ट करता है. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो सिस्टम जो हमारा इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम रीएडजस्ट्स द चेंज. So let us see this with the help of examples. Number first is effect of concentration. अगर हम concentration को change करेंगे, effect of concentration. So let us see effect of concentration. What will be the effect of concentration on equilibrium? Now this is very important. For example, I'll take a reaction. मेरे पास कोई reaction है. For example, I'll take a reaction. मेरे पास Fe3+. This is iron in +3 oxidation state. It reacts with SCN. minus. तो यहाँ पे मेरा कंपाउंड बनता है. What type of compound is formed? FeSCN. FeSCN2+. This is the compound that is formed over here. The color of this iron is pale yellow. It is pale yellow in color. इसका कलर होता है pale yellow. And color of SCN, it is colorless.
and color of this compound which is formed over here, that's reddish brown. This is reddish brown. This compound is reddish brown. You can remember the color of this compound, it is important. Now see what will happen if I add KCN. If I add KCN to this system, if I add potassium cyanide KCN, अगर मैं KCN को ऐड करूंगा, अगर मैं पोटेशियम साइनाइड या पोटेशियम सल्फोसाइनाइड को ऐड करूंगा, if I add potassium sulfocyanide, मतलब I am going to add to this system, मैं इस सिस्टम को ऐड करूंगा KSCN, this is potassium sulfocyanide. तो आपको बताना है रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन. नाउ वी नो दैट जो हमारे पास KCN होता है, we know that जो हमारे पास KCN होता है, ये SCN, it can break down into K plus ions and SCN minus ions. तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ SCN माइनस आयन्स की इंक्रीज हो जाएगी, इनकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. तो अगर आप इस सिस्टम में कंसेंट्रेशन ऑफ SCN आयन्स इंक्रीज करते हो, if you increase the concentration of SCN ions, means you are increasing the concentration of reactant. अगर concentration of reactant increase होगी, reaction will favor forward direction. So more of this compound will be formed. मतलब क्या निकला यहाँ से, अगर हम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, अगर हम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली अगर हम कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. Equilibrium will shift in backward direction. Means this is the effect of concentration. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ इसको और ज्यादा एक्सप्लेन डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगा. मेरे पास ये वाली रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन gives 2 times ammonia. तो मुझे बता, if you want the more production of ammonia or the production of ammonia, आपको ज्यादा अमोनिया की जरूरत है, that is forward reaction. फॉरवर्ड रिएक्शन की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, you will decrease the concentration of N2. number first, decrease concentration of N2 and H2. number second, increase concentration of N2 and H2. number third, you will only increase concentration of nitrogen. अब मुझे बता इन तीन में से कौन सा आंसर आएगा. What will you do, आप क्या करोगे, इन तीन में से कौन सा आंसर आएगा, मुझे बता इन तीन में से कौन सा आंसर आएगा. अगर आपको ज्यादा अमोनिया फॉर्म करना है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, आपको ज्यादा अमोनिया फॉर्म करना है यहाँ पे. What will you do? Are you going to decrease the concentration of N2H2 or increase the concentration of N2H2? Very good, B part. Very good, सीरत. Very good, सीरत शफी. Very good. जाकिर क्या बोल रहे हो, अस्मा. वेरी गुड. तो हम इंक्रीज करेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अभी हमने देखा अगर रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा. फॉरवर्ड रिएक्शन ये वाली रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन ये वाली रिएक्शन है. बैकवर्ड रिएक्शन इज लाइक दिस. तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमें जाना है, मोर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया करना है, तो यहाँ पे हमें कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दैट्स N2 एंड कंसेंट्रेशन ऑफ H2 ये हमें इंक्रीज करना है. मुझे लगता है आपको ये वाला कंसेप्ट फिलहाल समझ में आ गया, कंसेंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन, इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ H2 एंड N2. वेरी गुड. अरे महरूब, डिक्रीज कहाँ करेंगे, इंक्रीज करेंगे. डिक्रीज नहीं यार, इंक्रीज करेंगे.
तो मैं I'll take one more example. I'll take one more example. मेरे पास फॉर एग्जाम्पल PCl5 है, it associates to give PCl3 plus Cl2. अगर आपको ज्यादा PCl5 चाहिए for the production of PCl5, for the production of PCl5, बोलो मुझे किस चीज की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करोगे, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे? आपको ज्यादा पीसीएल बनाना है, मोर PCl5 प्रिपेयर करना है, तो आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो आप मुझे बताओ किस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा करोगे, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? प्रोडक्ट की। वेरी गुड सी रक्षित, प्रोडक्ट की। बिकॉज आपको बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा करनी है, बैकवर्ड रिएक्शन आपको ज्यादा करनी है, देयरफॉर आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है। अगर आप ये वाली कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो मोर ऑफ दिस PCl5 विल बी फॉर्म। फैसल क्या बोल रहे हो? मोर ऑफ दिस PCl5 विल बी फॉर्म। तो मुझे पता मेरे पास कोई रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट डेसोसिएट्स टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर आपको फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करनी है, फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करना है, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करनी है, तो मुझे बताओ आप कौन सी कंसंट्रेशन, किस चीज की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे? आप किस चीज की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे इन ऑर्डर टू फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन? किस चीज की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करोगे इन ऑर्डर टू फेवर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो विल इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, increasing calcium carbonate concentration, that is reactant concentration, will favor forward reaction. तो बेसिकली आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आपको समझ में आया ना। नंबर सेकंड इफेक्ट विल डिस्कस, दैट्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये वाला हमने कल भी डिस्कस किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेसिकली हम दो तरह से स्टडी करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वी आर स्टडीइंग बाय टू वेज। या तो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, या तो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आवर डेल H इज नेगेटिव, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस आवर डेल H इज पॉजिटिव। इस चीज को मैंने कल वन टॉप इक्वेशन से एक्सप्लेन किया था। तो अगर हमारा डेल H नेगेटिव है दैट मींस हीट इज एवॉल्व्ड, अगर डेल H पॉजिटिव है दैट मींस हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो मैंने कहा था फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, for endothermic reactions these are favored by increasing temperature, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ज्यादा लगता है, and these are favored by decreasing temperature, यहाँ पे टेम्परेचर कम लगता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अब कोई रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स मी अमोनिया। दिस फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे डेल H इज इक्वल टू नेगेटिव, मींस दिस फॉरवर्ड रिएक्शन इज नेगेटिव। अगर ये del H means negative, means forward reaction is negative. अगर forward reaction का del H negative है तो backward reaction का del H क्या होगा? Very good, thermodynamics से अप्लाई करो। अगर forward reaction का del H negative होगा तो backward reaction का इस reaction का del H क्या होगा? इस reaction का del H क्या होगा? इस reaction का del H क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? आप रिएक्शन को फ्लिप करते हो पॉजिटिव, वेरी गुड। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का नेगेटिव है तो बैकवर्ड रिएक्शन का पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा। अगर डेल H पॉजिटिव है, जिस रिएक्शन का डेल H पॉजिटिव होगा ना, अगर फॉरवर्ड इस रिएक्शन का डेल H नेगेटिव है, मींस अगर आपको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन करनी है तो आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? टेल मी, आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल H पॉजिटिव है, आपको ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस करना है, आप टेम्परेचर को क्या करोगे? डिक्रीज और इंक्रीज? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर हैज टू बी डिक्रीज्ड, देयरफॉर टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन जो बन गई यहाँ पे, इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन जो अब तक बन गई, द कंडीशन इज टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी लो। नंबर सेकंड, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन करनी है तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंक्रीज करना है और कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंक्रीज करना है। तो दीज आर टू कंडीशंस व्हिच आर एप्लीकेबल नाउ। तो टेम्परेचर को आपको डिक्रीज करना है अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है।
You have to decrease the temperature if the reaction is exothermic. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मुझे बता इस रिएक्शन में क्या होगा? N2 plus O2 gives me twice NO. So this all these are gaseous. Means ये वाला equilibrium क्या है? Homogeneous equilibrium. Del H for this reaction is plus 180. Del H for this reaction is plus 180 kilojoules. Del H for this reaction is plus 180 kilojoules. तो मुझे बता यहाँ पे इस रिएक्शन में कौन सा टेम्परेचर फेवर करेगा? टेम्परेचर हाई होना चाहिए या लो? वेरी गुड. फॉर दिस रिएक्शन टेम्परेचर शुड बी हाई और लो? वेरी गुड, हाई. वेरी गुड, नाइस. तो इस रिएक्शन को फेवर करने के लिए टेम्परेचर शुड बी हाई एंड concentration of NO should increase. आपको concentration, sorry, this is N2. concentration of N2 increase करना है, concentration of O2 increase करना है. Very nice, very nice. That is great. Very good. तो effect of temperature basically ये कहाँ से आया? ये हमने कल लाया वन टॉप इक्वेशन से. वन टॉप इक्वेशन में इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है. अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आप YouTube पे जाके देख सकते हो. लेक्चर 05 केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर 05, वहां पे मैंने इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है. सो दीज आर टू इफेक्ट्स. नाउ लेट अस डिस्कस थर्ड इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे. तो प्रेशर का इफेक्ट बेसिकली कैसे होगा? विल सी इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज एप्लीकेबल ओनली टू इक्विलिब्रियम व्हिच इन्वॉल्व गैसेस. जिसमें सिर्फ हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होंगे. जिसमें सिर्फ गैसियस होंगे. जो concentration of reactant is concentration of species that is to be expressed in gases, वहां पे प्रेशर का इफेक्ट होगा. तो यहाँ पे आप नोट डाउन करो, an increase in pressure, an increase in pressure. अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, favors the reaction in which there occurs decrease in the number of moles. Favors that side where there occurs decrease in the number of moles. Decrease in number of moles. इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे. लेट अस टेक द सेम रिएक्शन. N2 plus H2 gives me 2 times ammonia. Gives me 2 times ammonia. N2 plus H2 gives me 2 times ammonia. Let delta H of this reaction, which is minus 92.6 kilojoules per mole. Minus 92.6. तो मुझे बताना है, पहले मुझे बता इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए आपका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज माइनस 92.6 किलोजूल. तो डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? वेरी गुड, लो टेम्परेचर. सो इट विल बी फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर. फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर. अब प्रेशर की बात करते हैं. अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है. तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे कम है, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे कम है ना. दिस इज 1 मोल, दीज आर 3 मोल्स. तो रिएक्टेंट्स में टोटल 4 मोल्स है, प्रोडक्ट्स में 2 मोल्स हैं. अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करोगे, यहाँ पे डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स है. तो जहां साइड में डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स है, वहां पे प्रेशर हाई होगा. इस रिएक्शन को हाई प्रेशर फेवर करेगी. इस रिएक्शन को हाई प्रेशर फेवर करेगी. इस रिएक्शन को हाई प्रेशर फेवर करेगी. हाई प्रेशर विल फेवर दिस रिएक्शन. आई बात आपको समझ में? फॉरवर्ड रिएक्शन को हाई प्रेशर फेवर करेगी. लो टेम्परेचर, प्रेशर जहां पे डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स होता है, वहां उस साइड में हाई प्रेशर फेवर करता है. तो यहाँ पे डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स, कम मोल्स हैं. तो अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन देखनी है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन को लो टेम्परेचर, फॉरवर्ड रिएक्शन को हाई प्रेशर फेवर करेगी. नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसको फेवर करेगा, दैट्स कंसंट्रेशन ऑफ N2 को इंक्रीज करो एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 को इंक्रीज करो.
adding concentration of N2 and H2. Adding N2 and H2, that will favor forward reaction. So these things will favor forward reaction. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? This is what is Lee-Cartier principle. अगर ये बात आपको समझ में आ गई, we will solve questions on Lee-Cartier principle, or we will conclude it by using certain tips. Have you got it? Very good, very good, very good. तो मैं बोलूंगा इस रिएक्शन में आप बोलो कौन सा फैक्टर फेवर करेगा? इस रिएक्शन में कौन सा फैक्टर फेवर करेगा? PCl5 gives PCl3 plus Cl2. Let us take all of these are in gaseous phase. तो मुझे बता फॉरवर्ड रिएक्शन को कौन सा, फॉर एग्जांपल del H for this reaction, del H will be given always. It is plus 63.5 kilojoules. It will be given. ये बात आपको याद नहीं रखनी. It will be always given. तो मुझे बता इस रिएक्शन को टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन को टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? वेरी गुड. टेम्परेचर क्या होना चाहिए? प्रेशर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर हाई. वेरी गुड. इट्स एंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए. व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर कितना होना चाहिए? लो या हाई? प्रेशर लो. वेरी गुड मैरो, बट वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो प्रेशर यहाँ पे लो होना चाहिए. प्रेशर लो होना चाहिए. वाई? बिकॉज यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ 1 + 1 2 मोल्स है. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स विल फेवर दैट साइड वेयर देयर इज लो प्रेशर. मतलब इसका अपोजिट. दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई ली-चैटलियर प्रिंसिपल. आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम ली-चैटलियर प्रिंसिपल. दीज आर 3 इफेक्ट्स. तो ये 3 इफेक्ट्स आपकी समझ में आ गई. नाउ लेट अस टेक सर्टेन एग्जांपल्स. इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे. अगर मेरे पास आइस है, इस आइस को मैं हीट करूंगा, इस आइस को मैं हीट करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू वाटर. तो मुझे बताओ अगर आइस, दिस इज सॉलिड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, दैट इज लिक्विड. तो मुझे बता ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? आइस को आपको वाटर बनाना है, क्या यहाँ हीट एवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है? Is it endothermic reaction or exothermic reaction? Conversion of ice into water. अरे यार क्या कहते हो जाकिर, थर्मो का कोई क्लास ही नहीं लिया है आपने शायद. आइस को कन्वर्ट करना है, सॉलिड को कन्वर्ट करना है इनटू लिक्विड. सिंपल सी बात है. आइस को कन्वर्ट करना है इनटू वाटर. इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होगी या एवॉल्व होगी? एंडोथर्मिक. वेरी गुड. दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक मींस del H for this reaction is positive. थोड़ा दिमाग भी लगाना है. इस रिएक्शन के लिए del H पॉजिटिव होगा. तो इस रिएक्शन के लिए आपको टेम्परेचर क्या होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए? तो मुझे बता यहाँ पे वॉल्यूम को क्या होता है? यहाँ पे मोल्स 1 and 1 है, लेकिन वॉल्यूम को देखना है. आइस का वॉल्यूम ज्यादा है या वाटर का वॉल्यूम ज्यादा है? आइस और वाटर वॉल्यूम किसका ज्यादा है? वाटर लिक्विड. आइस और वाटर वॉल्यूम किसका ज्यादा है? आइस और वाटर वॉल्यूम किसका ज्यादा है? सिंपल सी बात है. अरे यार क्या बोलते हैं साहिल? आइस और वाटर वॉल्यूम किसका ज्यादा है? वॉल्यूम किसका ज्यादा है? एक गिलास में आप आइस ले लो और उतना ही पानी ले लो, उसी आइस को वाटर बनाओ, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? अरे टेक ए कंटेनर. ये हमने कंटेनर लिया. लेट दिस इज 1 लीटर कंटेनर. इसमें हमने आइस डाल दिया. इसी आइस को हमने वाटर बना दिया. इसी कंटेनर में दूसरी इसी कंटेनर में डाल दिया वाटर, तो इतना ही होगा. दिस इज अ डे टू डे एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है आइस में एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर. आप क्या बोलते हो? लॉजिक अप्लाई करो ना. वाटर लिक्विड है, फिर लिक्विड होने से क्या होगा? अरे कॉमन सेंस की बात है. आप ले लो ना ऐसे किसी बर्तन में आप आइस ले लो, उतना ही आइस को पिघलाओ और उसको किसी दूसरे उतने ही बर्तन में ले लो, तो वाटर कम आ जाएगा ना. सो वाटर का वॉल्यूम कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आइस. हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर, वेरी गुड. तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है. वॉल्यूम डिक्रीज होना है मतलब प्रेशर को आपको इंक्रीज करना है. चाहे वॉल्यूम डिक्रीज हो,
चाहे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो, तो आपको वहां पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, प्रेशर हैज टू बी इंक्रीज, ये हमने अभी देखा था। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको प्रेशर ज्यादा चाहिए, यहाँ पे आपको प्रेशर ज्यादा चाहिए और टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। किसी भी एग्जाम में आएगा, याद रखना मेरी बात, ये वाला क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, टेम्परेचर लो, अरे यार ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना मैक, मैक ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आइस खुद से वाटर नहीं बनेगा ना जब तक आप हीट करोगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेल एच इज पॉजिटिव, तो अगर ये नहीं लिखा होगा फिर भी कॉमन सेंस है, आप आइस को वाटर बनाते हो, आपको हीट देनी है, मतलब अगर आप हीट देते हो तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर को हाई होना चाहिए और प्रेशर को हाई होना चाहिए, बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस। मैक क्या बात समझ में आ गई आपको? जी सर, वेरी गुड। तो मैं इसकी एक और एग्जांपल लूंगा, इसको और एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे लूंगा। ना लेट मी टेक द सेम एग्जांपल, मेरे पास वाटर है, दिस इज वाटर इन लिक्विड फेज। मैं इस वाटर को कन्वर्ट करूंगा इनटू वाटर वेपर, मैं इस वाटर को कन्वर्ट करूंगा इनटू वाटर वेपर। मुझे बोलो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? मुझे बोलो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? वाटर लिक्विड को कन्वर्ट करो वाटर गैस में, क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? अरे साहिल क्या बात बोलते हो, वेरी गुड अस्मा, वेरी गुड महक। साहिल क्या बात बोलते हो? वाटर को आपको घर में, आपका गैस है, ये गैस चूल्हा है, इस गैस चूल्हे पे आपने किसी बर्तन को रखा, इस बर्तन में आपको आपने वाटर को रखा, इसको आपको बॉईल करना है। तो बॉईल करने के बाद यहाँ पे वेपर्स बन जाएंगे, तो आपको हीट करना है, हीट करना है मतलब एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ वाटर लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है या वाटर वेपर का वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वाटर लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है या वाटर वेपर का वॉल्यूम ज्यादा है? अरे यार क्या बोलते हो। Now see, water vapor will occupy more volume, gases occupy a large volume. Water vapor will occupy more volume, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसका वॉल्यूम लेस है, इसका वॉल्यूम मोर है। प्रोसेस एंडोथर्मिक है, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो दिस रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इट विल बी फेवर्ड, दिस प्रोसेस evaporation process it will be favored by, evaporation will be favored by, since process endothermic therefore high temperature, evaporation खुद ही नहीं होगी जब तक ना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। नंबर फर्स्ट वॉल्यूम यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, देयरफॉर लो प्रेशर, लो प्रेशर, देयरफॉर लो प्रेशर। वाटर वेपर का वॉल्यूम ज्यादा होता है। हाँ, इसको आप डे टू डे लाइफ में अगर डायरेक्ट लिखोगे विदाउट यूजिंग ली चटर्टुट प्रिंसिपल फिर भी आपको समझ में आएगा, आप दिमाग नहीं लगाते हो, आपका दिमाग शाम को ही काम करता है, शाम को ठीक था कला। तो सी मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने वाटर को लिया, मुझे इस वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है, मुझे इस वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है। व्हाट विल आई डू, आई विल अप्लाई हीट टू इट। तो हीट मतलब इट इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब टेम्परेचर हाई करना है, काम खत्म। नंबर सेकंड, दिस इज लिक्विड, इसको मुझे वेपर बनाना है। तो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा यहाँ से, क्या इसको वेपर बनेगा? नहीं, प्रेशर को डिक्रीज करना है तभी इसका वेपर बन जाएगा। तो प्रेशर को लो करना है। हैव यू गॉट इट नाउ, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मुझे बताइए ये बात आपको समझ में आ गई अब? क्या ये बात आपको, वेरी गुड अस्मा, हमारा मैक, क्या ये बात आपका नहीं था? ये सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं। लेट अस टेक वन टू एग्जांपल्स मोर। एक सेकंड करो, गुड मॉर्निंग।
तो बेसिकली इस वक्त मेरा क्लास चल रहा है, यू कैन कॉल मी आफ्टर हाफ एन आवर। तो नाउ सी, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लूंगा। I'll take one more example over here. Now let us take this example. PCl5 dissociates to you PCl3 plus Cl2. Delta H for this reaction is 63.5 किलोजूल। तो मुझे पता इसकी कंडीशन, मुझे पता इसकी कंडीशंस। व्हाट आर द कंडीशंस? व्हिच कंडीशंस विल फेवर अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल? मुझे पता टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए। What will be the effect of temperature and pressure? Previous year questions देखो, उनमें आए हैं सब क्वेश्चन। टेम्परेचर हाई एंड प्रेशर लो। वेरी गुड। तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर शुड बी हाई। नाउ व्हाट अबाउट प्रेशर? यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल्स बनते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होता है, इसलिए प्रेशर लो होना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी नाइस फ्रॉम यू, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको प्रेशर, यहाँ पे आपको प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। ये वाला क्वेश्चन करो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन आप करो। आपके पास SO2 है प्लस आपके पास O2 है, इट गिव्स SO3। तो मुझे बताओ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ SO3, अगर SO3 को ज्यादा बनाना है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ SO3 व्हाट कंडीशंस आर फेवरेबल? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर? एंड फॉर दिस रिएक्शन आपका डेल्टा एच जो है, for this reaction delta H is minus 45 kilojoules per example. तो मुझे बता इस रिएक्शन के लिए what will be the effect of delta, what will be the effect of temperature and pressure? इसके जितने एग्जांपल्स होंगे उतने आप करना। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे टेक्स्ट बुक में है। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Since the reaction is exothermic, therefore low temperature. Since there occurs 2 and 1, that is 3 moles, यहाँ पे 1 moles, number of moles decrease होते हैं, therefore high pressure. बस simple concept लगाना है, simple concept. Now the fourth important effect is effect of inert gas. Effect of inert gas. अगर हम कोई inert gas ऐड करेंगे, तो inert gas किस gas को कहते हैं? What is inert gas? Inert gas is that gas, it is that gas which do not react with reactants or products reaction mixture. We do not react with reactant mixture. We do not react with reaction mixture. जो reaction के साथ, जो भी reaction में होंगे substances, उनके साथ reactor नहीं करेगा, that is inert gas. That is inert gas. तो effect of inert gas, अगर आप for example इस reaction को SO2 plus O2 gives SO3, अगर आप इस reaction को inert gas ऐड करते हैं, inert gas ऐड करते हो तो क्या होगा? Inert gas can be added at by two important conditions. Number first, addition of inert gas at constant volume. At constant volume, जब volume change नहीं होता है, addition of inert gas at constant volume. अगर inert gas को constant volume पे ऐड करेंगे, there will be no effect. Equilibrium पे कोई effect नहीं होगा. For example, मेरे पास H2 plus I2 gives me twice HI. तो यहाँ पे आप वॉल्यूम देखो, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, रिएक्टेंट में 2 मोल, प्रोडक्ट में 2 मोल, तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 0। तो अगर यहाँ पे आप इनर्ट गैस ऐड करोगे, दैट विल हैव नो इफेक्ट, दैट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट विल हैव नो इफेक्ट। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम चेंज होता है, तो then the effect of adding inert gas is same as that of pressure. Then the effect of adding inert gas is same as that of pressure. इसका मतलब यहाँ पे अगर inert gas ऐड करोगे, effect will be same as that of pressure. Effect will be same as that of pressure.
as that of pressure. Effect will be same as that of pressure. नहीं, नोबल गैसेस नहीं होते हैं। इनर्ट गैस उसको कहते हैं जो रिएक्शन मिक्सचर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कोई भी सब्सटेंस ऐड करेंगे दैट विल नॉट रिएक्ट विद द रिएक्टेंट मिक्सचर, दैट्स इनर्ट गैस। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई रिएक्शन लूंगा, मेरे पास रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली रिएक्शन है H2 + Cl2 gives twice HCl। तो मुझे पता अगर मैं इसको इनर्ट गैस ऐड करूंगा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम अगर मैं इसको इनर्ट गैस ऐड करूंगा। इज देयर एनी इफेक्ट और नो इफेक्ट? मुझे बता अगर इस रिएक्शन में मैं इनर्ट गैस ऐड करूंगा व्हाट विल बी द इफेक्ट? वेरी गुड, वेरी गुड, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम साहिल, यस वेरी गुड, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। अगर इस रिएक्शन में मैं इनर्ट गैस ऐड करूंगा तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं। रिएक्शन विल गो इन दी दैट डायरेक्शन। अगर आपका वॉल्यूम सेम नहीं है तो रिएक्शन विल गो इन दिस डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स विल इंक्रीज। So reaction will go in the backward direction. This is all about डी चैटलियर प्रिंसिपल। इस पे अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना, इस पे अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। क्या आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे? क्या आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे? कैन यू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन डी चैटलियर प्रिंसिपल? Can you solve questions now based on डी चैटलियर प्रिंसिपल? Fast.